آج کل پنجاب بھر میں تجاوزات کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے. لوگ بہت پریشان ہیں کہ ہمارے بزنس بند کر دیے جا رہے ہیں. مریم نواز نے جو انیشیٹو لیا یہ کتنا فائدہ مند ہوگا پنجاب کے لیے؟ ایک بندے کی اگر شاپ ہے نا, اس کے باہر وہ ٹھیلے لگاتا, 3 دکانیں بنائی ہوئی تھی, گاڑیوں کا گزرنا محال تھا, 20 منٹ کا سفر تھا وہ 1 گھنٹے میں طے ہوتا تھا. جی ٹی روڈ پہ کون سے تجاوزات تھے؟ جی ٹی روڈ پہ سچویشن یہ تھی کہ سڑک کے بالکل ساتھ فٹوں کے حساب سے 2-4 فٹ چھوڑ کے انہوں نے دکانیں قائم کی ہوئی تھی. کسی نے ٹینٹ لگائے ہوئے تھے, کسی نے مٹی کی دکانیں بنائی, کسی نے پختہ, اور وہ روڈ جو ہے نا وہ بالکل سکڑ جاتا تھا اور سفر مشکل ہو جاتا تھا. اور ایون ہاؤسنگ سوسائٹی نے قبضے کر کے اپنے مین گیٹ روڈ پہ لے آئے. سب سے زیادہ میڈم کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا, میڈم سی ایم نے ایک ریڈی بازار قائم کیے ہیں. میڈم نے بڑے ایکسپینسو اور بڑی بہترین لگژری ان کو ریڈیاں دی اور ایک ترتیب سے دی, اور سب کو یہ فری دی گئی ہیں. جن کو وہ ریڈیاں دی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ بیچی گئی ہیں ریڈیاں. کسی نے کہا 1.5 لاکھ کی بیچی, کسی نے کہا 80,000 کی بیچی. کچھ لوگوں نے واقعی ایسی حرکتیں کی تھی کہ ریڈیاں بیچی اور بعد میں کرائے بھی کلیکٹ کیے. میڈم نے ان کو اسٹرکٹ کہا کہ یہ تو فری فیسلٹی تھی, کون ویسے لے رہا ہے. ان کو پھر نوکریوں سے بھی نکالا گیا. ویسے بہت سارے افراد کے خلاف FIR درج ہوئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں زلیخا ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیومنز آف پاکستان. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ کالمسٹ ملک سلمان صاحب, اور ان سے ہم بات کریں گے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ جو بہت ہی زیادہ چرچے میں ہے آج کل. ان کے کالم پر لیا گیا ایکشن, تجاوزات کا ایکشن. آج کل پنجاب بھر میں تجاوزات کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے اور لوگ بہت پریشان ہیں کہ ہمارے بزنس بند کر دیے جا رہے ہیں اور ہمارے جو کام اور روزی روٹی کا جو ذریعہ ہے وہ گورنمنٹ بند کر رہی ہے. ہم جانتے ہیں ملک سلمان سے کہ یہ جو انہوں نے ٹاپک سلیکٹ کیا تھا, اس پہ مریم نواز نے جو انیشیٹو لیا, یہ کتنا فائدہ مند ہوگا پنجاب کے لیے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر مجھے یہ بتائیں, آپ نے کالم لکھا, کیا سوچ کے لکھا؟ آپ کو یہ نہیں اندازہ تھا کہ بہت سارے لوگوں کے اس کے بعد جو ہیں وہ کام ٹھپ ہو جائیں گے اور وہاں سے ان کے جو چھوٹے چھوٹے ٹھیلے ہیں وہ اٹھ جائیں گے, تو ان کی روزی روٹی کیسے چلے گی؟ اچھا, فرسٹ ٹائم ایور میں نے اس پہ سپتمبر 28 2024 کو لکھا تھا آرٹیکل کہ یہ تجاوزات ایک بہت بڑا ایشو ہے. اس سے جو اکانومی کو افیکٹ یہ پڑ رہا تھا کہ آپ دیکھیں بازار جو سکڑ کے چھوٹے ہوتے جا رہے تھے, یعنی ان کے روڈز, بازاروں نے, ایک بندے کی اگر شاپ ہے نا, اس کے باہر وہ مزید تجاوزات قائم کرتا تھا. اس کے بعد ٹھیلے لگاتا, 3 دکانیں بنائی ہوئی تھی, گاڑیوں کا گزرنا محال تھا, گھنٹوں کا سفر جو ہے نا وہ 4 گھنٹے میں جاتا تھا, جو 20 منٹ کا سفر تھا وہ 1 گھنٹے میں طے ہوتا تھا. اور پھر زمینوں پہ قبضے تھے تجاوزات کی مد میں. تو میں نے فرسٹ ٹائم انیشیٹ لیا, اس پہ لکھا. اس وقت میڈم مریم نے بیوروکریسی کو آرڈر دیا کہ آپ تجاوزات کے خلاف ایکشن لیں. وہ ایک ڈرائیو سٹارٹ ہوئی, لیکن اس طرح مؤثر نہ ہو سکی جیسے وہ پہلے ہوتا تھا کہ کارروائی ہوتی ہے تجاوزات کے خلاف اور پھر رسمی وہ تصویریں شیئر کرنے کے بعد کام ٹھپ ہو جاتا. جب یہ سب ٹھپ ہو گیا, پھر دوبارہ میں نے 2 جنوری کو کالم لکھا. اس میں میں نے پورے فیکٹ اینڈ فگر لیے کہ یہ جو اکانومی ہے تجاوزات, یہ $1 بلین کی اکانومی, چھوٹی نہیں ہے. اس پہ بار بار آپریشن ناکام اس لیے ہوتے ہیں کہ اس وقت کم از کم صرف پنجاب میں 40,000 ارب کی زمینوں پہ قبضے ہیں جو عارضی اور مستقل تجاوزات کے. یہ سارے فیکٹ میں نے 2-3 ماہ لگائے, اس پہ کیلکولیٹ کیا. لاہور کے فیکٹس میں نے لکھے کہ یہاں قبضے ہیں, اتنی جگہوں پہ نقصان ہو رہا ہے. پھر جو گورنمنٹ کی ریٹ قائم نہیں ہو رہی تھی, لوگوں کو جو مسائل تھے ان کو میں نے ہائی لائٹ کیا. اور لکیلی میڈم مریم نے اس آرٹیکل کو کلک کیا اور میڈم نے میرا آرٹیکل شیئر کیا تمام کمشنر DCs کے ساتھ کہ یہ جو اس نے فیکٹ لکھے ہیں. میڈم نے ظاہر اپنے CM آفس کے لوگوں سے چیک کیا ہوگا, ان کو کاؤنٹر ویریفائی کیا ہوگا, اور جب ان کو وہ فیکٹ ٹھیک لگے ہیں تو میڈم نے پھر اس پہ ان کو اسٹرکٹ آرڈر دیا کہ مجھے اس پہ بالکل تجاوزات فری پنجاب چاہیے. جو سرکاری زمینیں ہیں ان سے قبضے ختم کیے جائیں اور یہ گورنمنٹ کی ریٹ کو بحال کریں. اور پھر ایک اسٹرکٹ ڈرائیو سٹارٹ ہوئی انگیز اینٹی انکروچمنٹ, اور اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کافی انکروچمنٹ ہوئی. بڑے بڑے ٹھیلے تھے, پرانے مال لوگ لگے تھے, ایون 60 سال سے جنہوں نے قبضے کیے تھے وہ ختم ہوئے. اور پھر میں جی ٹور پہ ٹریول کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں کی صورتحال ویسی کی ویسی ہے. میں نے اس پہ پھر دوبارہ آرٹیکل لکھا جنوری کے اینڈ پہ, وہ پھر دوبارہ میڈم کو میں نے شیئر کیا, چیف سیکرٹری کو شیئر کیا, اور ان پوائنٹ سے میڈم نے دوبارہ ایگری کیا کہ یہ واقعی جی ٹی روڈ کا مسئلہ تو چینی ہے. پھر دوبارہ ان کو بیوروکریسی کو آرڈر دیا گیا کہ آپ جی ٹی روڈ کو بھی کلیئر کریں. تو الحمدللہ اب جی ٹی روڈ کی جو سڑکیں ہیں کافی کھلی ہو گئی ہیں, بہتر ہو گئی ہیں. جی ٹی روڈ پہ کون سے تجاوزات تھے؟ جی ٹی روڈ بہت زیادہ. جی ٹی روڈ پہ بائی لا تو آپ لیفٹ رائٹ پہ خاص پیمانہ اس پہ دکان قائم نہیں کر سکتے, لیکن جی ٹی روڈ پہ سچویشن یہ تھی کہ سڑک
के बिल्कुल 7 फुटों के हिसाब से 2-4 फुट छोड़ के उन्होंने दुकानें कायम की हुई थी। और पुख्ता दुकानें, आर्जी भी नहीं, किसी ने टेंट लगाए हुए थे, किसी ने मिट्टी की दुकानें बनाई, किसी ने पुख्ता, और वो रोड जो है ना वो बिल्कुल सिकुड़ जाता था और सफ़र मुश्किल हो जाता था। और इवन हाउसिंग सोसाइटी ने कब्जे करके अपने मेन गेट रोड पे ले आए थे। तो वो अभी मैंने लास्ट 3 दिन पहले दोबारा फिर लिखा इसी पे, क्योंकि रमज़ान में ऐसा हुआ कि ज़्यादा बहुत ही चल रही थी, रोड खुले हो गए थे, रेडियो। सबसे ज़्यादा मैडम को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, मैडम सीएम ने एक रेडी बाज़ार कायम की हैं। उन्होंने कहा जो पुराने स्टाइल की रेडियाँ हैं, ये जो गदा गाड़ियाँ हैं, जो रक्शे हैं, जहाँ दिल करता है रोड पर रखने, ये कल्चर ना हो। मैडम ने बड़े एक्सपेंसिव और बड़ी बेहतरीन लग्जरी इनको रेडियाँ दी और एक तरतीब से दी। और फिर वो तमाम जो इंतजामी अफसरान को कहा कि आपने इसको बिल्कुल एक रेड लाइन लगा के सबको एक ही स्टाइल की रेडियां एक ही लाइन पे उनको बकायदा नंबरिंग लगी हो और सबको ये फ्री दी गई हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे बात टोक रही हूँ, आपने कहा सबको फ्री दी गई। यहाँ पे मैंने उन लोगों से बात की जो रेडी बांध थे, जिनको वो रेडियां दी गई, तो उन्होंने कहा कि हमें तो ये बेची गई हैं रेडियां। किसी ने कहा 1.5 लाख की बेची, किसी ने कहा 80 हज़ार की बेची। आप कह रहे हैं फ्री है, इसका कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये फ्री दी गई हैं और लोगों तक ये बात पहुंचा सकें कि अगर फ्री है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लोग जाके। जो वज़ीर-ए-आला पंजाब ने रेडियां दी हैं पूरे पंजाब में दी हैं और टोटल फ्री हैं और उसकी बकायदा एडवर्टाइज़ किया गया है, सबको बताया गया कि इस पर कोई भी कीमत अदा ना करे। असल में जब वो इंतज़ामी अफसरान हैं, स्पेशल जो MC के हैं लोग हैं, इंक्रोचमेंट अफसरान, असल में उनका काम तो इंक्रोचमेंट ख़त्म करना, लेकिन वो इतने बेहिस हो चुके हैं कि वो इंक्रोचमेंट लगवाने के पैसे लेते हैं। उनमें से कुछ लोगों ने वाकई ऐसी हरकतें की थी कि रेडियाँ बेची और बाद में किराए भी कलेक्ट किए। वो मीडिया को क्रेडिट जाता है कि मीडिया ने, जैसे आपने और बहुत सारे लोगों ने उसके पे प्रोग्राम्स किए, तो उस पर फिर DC's कंसर्न ने एक्शन लिया। मैडम ने उनको स्ट्रिक्ट कहा कि ये तो फ्री फैसिलिटी थी, कौन वैसे ले रहा है। उनको फिर नौकरियों से भी निकाला गया। उन पे से बहुत सारे अफराद के खिलाफ FIR दर्ज हुई हैं जिन्होंने रेडियो से पैसे लिए थे। तो वो टोटल फ्री हैं। इस पर मीडिया कैंपेन स्टार्ट की गई हैं, बल्कि बाहर रेडी वाले से फीडबैक लिया गया है कि किसी से कोई पैसे तो लिए गए। अच्छा। जिनसे लिए गए हैं उनसे बंदों की निशानदेही करके उनको बाकायदा नौकरी से निकाला गया, उनको जेल भेजा गया है। फिर भी अगर कोई ऐसा शिकायत आती है तो वज़ीर-ए-आला का कंप्लेंट सेल है, उस पर शिकायत करें तो मेरे ख्याल घंटों में असर हो जाता है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव था। अच्छा, अब मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं जो परसों आर्टिकल लिखने में मजबूर हुआ वो ये सिचुएशन थी कि रमज़ान में ब्यूरोक्रेसी ने खुद साख्ता फैसला किया जी। इन्होंने खुद साख्ता फैसले के तहत कहा जी नरमी कर रहे हैं, ईद लगाने दे रोज़ों को, रोज़े में आम आवाम को ईद लगाने दो। ईद लगाने दो के नाम पे इन्होंने फिर उन रेडियों को, इन तजावज़ात को आसानी कर दी। फिर आपने देखा होगा कि रमज़ान में अफ्तारी करने में निकलते थे, 10 मिनट का फासला था 50 मिनट में होता था। रेडियाँ कुछ खजूरें बेच रहा है, कुछ समोसे बेच रहा है, फिर वो सारा कल्चर आम हो गया। ईद पर भी यही हालात रहे। मैंने फिर दोबारा तवज्जो दिलाई कि ये तो वहीं पे काम सिचुएशन आ गया है। अब वो जब मैंने ये आर्टिकल परसों लिखा है तो उस पर मैडम CM ने इंतज़ामी अफसरान को ये स्ट्रिक्टली कहा कि ये ज़ीरो टॉलरेंस है, आपने किसी को कोई खुद सादा डिसीजन नहीं ले सकते, किसी को नरमी नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट की रिट बहाल होगी और ये जो 40,000 की प्रॉपर्टी पे कब्जा है ये पंजाब की आवाम के पैसे हैं, पंजाब की आवाम का हक है। इससे हम पंजाब की आवाम को फैसिलिटेट करेंगे। और आपने देखा कि वो इन जो कब्जे के पैसे ज़मीनें हैं इन पे आवाम को वागजा करवा के पार्क बना के दे रहे हैं, उन पे हॉस्पिटल्स बन रहे हैं और बहुत सारी सहूलियत बन रही हैं। तो ये मैडम का अच्छा इनिशिएटिव है कि वो सरकारी ज़मीनें जिस पे लोग हाउसिंग सोसाइटियाँ बना के बैठ के थे, कब्जे करके बैठ के थे, जो सड़क थी उस पर कब्जे छड़वा के वहाँ पे मैडम ने पार्क्स बनाए हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं और खेल के मैदान बन रहे हैं। अच्छा। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और मैं समझता हूँ उनकी ज़रूरत है। उन्होंने अपने पार्लियामेंटेरियन को नाराज़ किया है। पार्लियामेंटेरियन बहुत सारे बेनिफिशरी थे जो किराए लेते थे उन तजावज़ात के, ब्यूरोक्रेट पुराने थे जो शेल्टर देते थे कि ये तुम ये दुकानें बना लो। तो वो जो 50-50, 60-60 साल के कब्जे थे, वो जो मिथ्ये थी वो टूट गई हैं। और अभी उन्होंने जिस तरह किया, मेरा ख्याल है कि आपने भी देखा कि स्टूडेंट ने सर्वे जो हुआ है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में, लाहौर के, पंजाब के, उसमें सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट ने अप्रिशिएट किया है मैडम को वो ये किया था कि ये हमें सियासतदान इसलिए पसंद आई है कि ये वाकई हम सियासतदानों कहते थे कि वो गैर सियासी होते हैं, इन्होंने गैर सियासी बन के दिखा दिया है। इन्होंने दिखाया है कि मैं सबके लिए इक्वल हूँ। अब स्कूटियाँ लोगों को मेरिट पे मिली हैं, तलीमी वज़ाइफ मेरिट पे मिली। ये स्कूटियों वाली बात जो है ना, इससे मैं आपका थोड़ा सा करती हूँ कि मुझे पता लगा है कि स्कूटीज मिलनी थी लेकिन अभी तक नहीं मिल पाई। नहीं मिली है। मैंने रमज़ान में इफ्तारी रखी थी मीडिया के दोस्तों की, वहाँ पे एक मीडिया की कोलीग थी खातून, ये पब्लिक न्यूज़ में होती हैं, वो स्कूटी पे आई हैं। तो मैं बड़ा हैरान था, बड़ी अच्छी उन्होंने खोल के दिखाई, बड़े कंफर्ट उसमें। अच्छा। और वो कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ सिंपल अप्लाई किया है और मेरा नाम निकला है। और किसी को भी मिल सकती है, किसी खातून को भी सिर्फ जो उनके गवर्नमेंट का क्राइटेरिया कि एज ब्रैकेट और उसमें उन्होंने कुछ रखा है कि वो जो
स्टूडेंट हो या वर्किंग वुमेन हो, जो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है वो अप्लाई करे, और सिंपल एक कुरानदाजी होती है उसमें उनको एक आसान साथ पे मिल जाती है। तो ये बहुत सारी बच्चियों को सहूलत है। इसमें मैं एक गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूँगा कि ये बहुत अच्छा है। अब आप भी, मैं भी गाड़ी में आया हूँ तो रस्ते में काफ़ी बच्चियाँ चलाती नजर आई हैं और ये स्कूटी चलाती हूँ, आप भी चलाती हैं। तो देखें, इस पे मैं आपकी तायद करते हुए, आपकी सपोर्ट करते हुए गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन बच्चियों को ये स्कूटियाँ मिली हैं, वो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको हिम्मत और इंकरेजमेंट मिलनी चाहिए कि वो इसी तरह फील्ड में निकलें। लेकिन ऐसी किसी बच्ची को जो स्कूटी पे निकलती है, बाइसिकल पे निकलती है, उसको अगर कोई भी हरास करता है तो उसको निशाने इबरत बना दें। क्योंकि अगर मैडम सीएम इनको स्कूटियाँ तो दे रही बच्चियों को, लेकिन उनको तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी है, उनको इंकरेजमेंट भी देना ज़रूरी है। तो ये एक बड़ा ज़रूरी एलिमेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है, तहफ़्फ़ुज़ तो बहुत बड़ा एलिमेंट है और वो मिलना चाहिए हमारी ख़वातीन को, बच्चियों को, क्योंकि बहुत बड़ा हिम्मत का काम होता है जब ख़वातीन बाहर निकलती हैं रोज़ी रोटी कमाने के लिए। और एक तो उनको स्ट्रेस होता है कि हम लोगों ने ड्राइव करके जाना, आपको पता है कि ख़वातीन बड़े डरपोक होती हैं ड्राइविंग के मामले में, लेकिन साथ साथ तंग किया जाता है उनको। लेकिन अब हमारा जो माहौल है वो चेंज हो चुका है, बहुत कम, मैं खुद स्कूटी चलाती हूँ, बहुत कम लोग अब जो है ना इस चीज़ में देखते हैं कि ओहो लड़की स्कूटी चला रही है। अब लोग इसको हज़म करना शुरू हो गए हैं कि हाँ लड़कियाँ भी हमारे शाना बशाना खड़ी हो सकती हैं और ये चीज़ें जी साथ साथ कर सकती हैं। अप्रिशिएट करते हैं तजावुज़ात वाले जो मैम ने इनिशिएटिव लिया है तजावुज़ात के हवाले से, उसको अप्रिशिएट करते हैं हम लोग, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा, यहाँ पर बात करते चले कसूर वाक़े की। एक वाक़या कसूर में पेश आया था, डांस पार्टी के ऊपर छापा मारा गया था और पुलिस हुकाम ने बाद में उन लड़के और लड़कियों की तस्वीर ली, वीडियोज़ बनाई बाकायदा और उनको बड़ी बुरी तरह हरास कर रहे थे। तो मरीम नवाज साहिबा ने जो है इसके खिलाफ एक्शन लिया कि ये उनका पर्सनल मैटर है, वो जो मर्जी करेंगे, उनकी मर्जी है, और मुअत्तल किए गए, बाकायदा नौकरी से निकाले गए, सस्पेंड कर दिए गए वो पुलिस वाले। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? अच्छा, शायद आपके इल्म में हो कि आई वॉज द ओनली वन जिसने इस पर आर्टिकल लिखा था। वो बच्चियों की वीडियो इतनी वायरल हो गई, हर बंदे के मोबाइल में पहुंच गई। उसमें पुलिस वाले बड़े बेहुदा अंदाज में कह रहे हैं कि वो बच्ची की तरफ टार्च मारते हुए कि मुंह सीधा करो, ये बाहर मुल्कान ने वेखनिया ने। तो मैंने अपने कॉलम का आगाज़ इस बात से किया था कि मुझे शर्म आती है कि ये हमारे मुआफ़ज़ हैं जो हमारी बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय उनको मुंह पे टार्च मारते हुए कह रहे हैं कि ये वीडियो तुम्हारी वायरल करेंगे। तो मैंने ये हाईलाइट किया था, मैंने मैडम सीएम को भेजा कि आपके एक खातून वज़ीर आला के होते हुए कोई इस तरह बच्चियों को तंग करता तो फिर हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। और मैंने इसमें इस चीज़ का बिल्कुल क्लियर वाशकाफ अल्फाज में उन बच्चियों को सपोर्ट किया था कि ये आप लोग क्यों हेजिटेट होते हैं कि अगर डांस करने वाली बच्चियां हैं तो उनको छापे मारेंगे, उनकी इज्जत पर माल करेंगे। भाई वो बच्चियां अगर अपनी खुशी सेलिब्रेट करना चाहती हैं, वो स्टूडेंट थे, तो उसमें वो डांस करते हुए करें, तो हम कौन होते जजमेंटल? लोग स्ट्रेस का शिकार हैं, उस स्ट्रेस से निकलने के लिए या अपनी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए किसी पुलिस को कोई हक नहीं कि चादर और चार दीवारी की पैमाली करे। और मैंने उसमें बाकायदा सजेस्ट किया था पीका और पीड़ा दोनों लगने चाहिए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह उन पे पीका और पीड़ा दोनों लगे हैं। उनको जेल भेजा गया, उन पुलिस वालों को, उनको नौकरियों से निकाला गया है। तो ये एक वाज़ेह मैसेज दिया है मैडम सीएम ने कि यहाँ पे हर बच्ची की इज्जत एक जैसी है, किसी के साथ जजमेंटल ना हुआ जाए, किसी को टारगेट ना किया जाए। और मैं वंस अगेन कहूँगा कि कोई बच्ची डांस करती है, जो भी करती है, पर्दा करती है, नहीं करती, उसकी पर्सनल लाइफ है। हमें कोई हक नहीं किसी को टीज करने का, किसी की वीडियो बनाने का, ये उनकी पर्सनल लाइफ है। ठीक है, इसी के साथ जुलेखा नासिर को दीजिए इजाज़त। एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।